अमृता मैम चैनल से एकांश बोल रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। There are types of injection molding machine. There are various types of injection molding machine available based on their functions and utilizations. Cost of the machine is increased depending on their functions and size. The simplest injection molding machine is a hand injection molding machine with a very low cost, and the costliest machine may be screw type automatic microprocessor injection molding machine. वहाँ कई तरह के इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उपलब्ध हैं। उनके कार्यों और उपयोग के आधार पर सबसे आसान इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बहुत कम दाम में। और सबसे महंगी मशीन स्क्रू टाइप ऑटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। जी आप देख सकते हैं वर्टिकल हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग का डायग्राम। फिर आगे पढ़ते हैं। The simplest mode of injection molding machine may be considered as hand-operated mode, which is an apt equipment to understand the interaction of major operating parameters. The machine consists of barrel, plunger, band heaters along with energy regulator, rack and pinion system for injecting the material by the plunger, a torpedo and nozzle. The clamping is done manually on a working table. The machine is fitted on the working table. Heating is set manually. The capacity of the machine is available from 0.5 OZ to 2 OZ. Once heating is achieved, the production starts manually. The quantity of the product is completely depending upon skill of the operator. The heating set point is achieved by heat and trial method. जो सबसे आसान तरीका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का हो सकता है वो है हैंड ऑपरेटेड मोड, जो कि एक उपयुक्त उपकरण है मुख्य ऑपरेटिंग पैरामीटर को समझने के लिए। ये मशीन बैरल, प्लंजर, बैरल हीटर, ऊर्जा रेगुलेटर्स के साथ रैक और पिनाइन सिस्टम, जो कि मटेरियल को इंजेक्ट करने के काम आता है प्लंजर के द्वारा, एक टॉरपेडो और नोजल से मिल करके बनती है। क्लैंपिंग को वर्किंग टेबल पर मैनुअल रूप से किया जाता है। गर्म करने यानी हीटिंग का काम भी मैनुअल रूप से किया जाता है। मशीन को वर्किंग टेबल पर फिट किया जाता है। मशीन की क्षमता 0.50 OZ से 2 OZ तक उपलब्ध है। एक बार गर्म करने यानी हीटिंग को काम प्राप्त हो जाता है, उत्पादन मैनुअल रूप से शुरू हो जाता है। गर्म करने की निर्दिष्ट बिंदु हीट और ट्रायल तरीके से प्राप्त की जाती है। उत्पाद यानी प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी क्वालिटी पूरी तरह से ऑपरेटर के कौशल यानी स्किल पर निर्भर होता है। Although temperature controller may be fitted on the machine, but the set point is completely depend on the quantity of the product produced by the operator. The cycle time is completely variable and it depends on the competence of the operator. The function of torpedo is to help the material for proper melting and create back pressure for help in mixing. हालांकि तापमान नियंत्रक को मशीन में फिट किया जा सकता है, पर निर्दिष्ट बिंदु पूरी तरह से उत्पाद की मात्रा पर निर्भर करती है, जो कि ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत की जाती है। टॉरपेडो का कार्य उन वस्तुओं की मदद या सहायता करने का है जो कि उचित गलन और क्रिएट बैक प्रेशर को मिक्सिंग में मदद करने के लिए है। प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग। A plunger type injection molding machine is available horizontal and vertical type and operated pneumatically or hydraulically. The clamping and injection may be semi or automatic. Plunger type injection molding machine horizontal या vertical प्रकार में उपलब्ध होती हैं और वायवीय और हाइड्रोलिक तरीके से संचालित किया जाता है। क्लैंपिंग और इंजेक्शन सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक हो सकता है। In a semi-automatic type, the clamping cylinder and the injection cylinders are operated by levers which is connected
the pneumatic or hydraulic cylinders. In automatic type, the cylinders are actuated automatically to a set timers. सेमी ऑटोमेटिक टाइप क्लैंपिंग सिलेंडर और इंजेक्शन सिलेंडर को लीवर से ऑपरेट किया जाता है, जो कि वायवीय या हाइड्रोलिक सिलेंडर से जुड़ा होता है। ऑटोमेटिक टाइप में सिलेंडर को प्रेरित किया जाता है ऑटोमेटिक टाइमर को सेट करने के लिए। अब आते हैं स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हॉपर होता है, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है, बैरल असेंबली होती है और इंजेक्शन नोजल होता है। दिस सिस्टम कंफाइंस एंड ट्रांसपोर्ट्स द प्लास्टिक एज इट प्रोग्रेसेस थ्रू द फीडिंग, कंप्रेशन, डिगैसिंग, मेल्टिंग, इंजेक्शन एंड पैकिंग स्टेजेस। ये सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है और कंट्रोल करता है प्लास्टिक को जैसे जैसे ये फीडिंग, कंप्रेशन, डिगैसिंग, मेल्टिंग, इंजेक्शन और पैकिंग स्टेजेस को पास करता है। A single screw injection molding machine for thermoplastics showing the plasticizing screw, a barrel, band heaters to heat the barrel, a stationary pattern and a movable pattern। एक सिंगल स्क्रू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थर्मोप्लास्टिक में जो इस्तेमाल की जाती है, उसमें प्लास्टिसाइजिंग स्क्रू को दिखाया जा रहा है, बैरल को दिखाया जा रहा है, बैंड हीटर जो कि बैरल को हीट कर रहे हैं, एक स्टेशनरी प्लैटन को दिखाया जा रहा है और एक मूवेबल प्लैटन को दिखाया जा रहा है। Plunger injection molding machine. As the plastic industry developed, a second type plunger machine appeared known as two-stage plunger. This type of equipment involved two plunger units set on the top of other, the one to plasticize the material and feed it to another cylinder that consists of a chamber to heat the plastic material by conduction, and plunger that operates as a shooting plunger and push the plasticized material into the mold। जैसे जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ, एक दूसरी तरीके की प्लंजर मशीन आई जिसको टू स्टेज प्लंजर कहते हैं। इस तरह के इक्विपमेंट में दो प्लंजर यूनिट होती हैं। पहली जो है वो टॉप पर होती है और दूसरी टॉप पर होती है, और दूसरी जो होती है वो मटेरियल को प्लास्टिसाइज करने के काम आती है। प्लास्टिसाइज मतलब कि प्लास्टिसाइज़र का ऐड करके उस मटेरियल को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। एंड फीड इट टू अनदर सिलेंडर दैट कंसिस्ट ऑफ अ चैम्बर टू हीट द प्लास्टिक मटेरियल बाय कंडक्शन एंड प्लंजर। और उसके बाद इस दूसरी प्लंजर यूनिट से मटेरियल को प्लास्टिसाइज करके दूसरे सिलेंडर में डाला जाता है, जो कि जिसमें एक ऐसा चैम्बर होता है जो कि प्लास्टिक मटेरियल को कंडक्शन द्वारा हीट करता है, और जो प्लंजर जो शूटिंग प्लंजर की तरह काम करता है, प्लास्टिसाइज किए हुए मटेरियल को मोल्ड में शिफ्ट कर देता है। इसके एडवांटेजेस यानी लाभ क्या क्या हैं? फास्टर दैन कन्वेंशनल मशीन सिंगल प्लंजर, मतलब कन्वेंशनल मशीन से ज़्यादा तेज़ है। नो प्रेशर लॉस एनकाउंटर्ड इन कंपैक्टिंग द ग्रेन्यूल्स, प्रेशर लॉस बहुत कम होता है जब ग्रेन्यूल्स को कॉम्पैक्ट यानी कि जब सिकुड़ा जाता है। अलाउज लार्जर पार्ट्स विद मोर प्रोजेक्टेड एरिया, ये बड़े पार्ट्स को ज़्यादा प्रोजेक्टेड एरिया के साथ बड़े पार्ट्स को ज़्यादा प्रोजेक्टेड एरिया के साथ अलाउ करता है, आने देता है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री प्लास्टिसाइजिंग सो कॉस्ट इज़ मोर। इसका मतलब ये है कि प्री प्लास्टिसाइजिंग का जो कॉस्ट है, जो प्री प्लास्टिसाइजिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा होता है, इसलिए उसका दाम भी ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं स्क्रू प्लंजर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। लेटर स्टिल अनदर वेरिएशन अपीयर्ड in which first plunger stage
also known as pre-plasticizer, was replaced by a rotating screw. In this case, the action of the screw serves to work and melt the resin and feed it to the second plunger unit where the injection ram forces it into the mold. बाद में एक अलग वेरिएशन आया जिसमें पहली प्लंजर स्टेज, जिसको प्री प्लास्टिसाइजर स्टेज कहते हैं, उसको रोटेटिंग स्क्रू से रिप्लेस कर दिया गया. In this case, the action of the screw serves to work and melt the resin. इस केस में जो स्क्रू है वो काम करता है उसको मेल्ट करने में और काम करने में उसकी मदद करता है रेजिन की, और फीड इट टू द सेकेंड प्लंजर यूनिट वेयर द इंजेक्शन रैम फोर्सेस इट फॉरवर्ड टू द मोल्ड, और इसको सेकेंड प्लंजर यूनिट में फीड करता है जहाँ से इंजेक्शन रैम इसको मोल्ड में फॉरवर्ड करता है. बेटर मिक्सिंग एंड shear एक्शन ऑफ द प्लास्टिक मेल्ट. एडवांटेजेस यानी लाभ इसके क्या क्या हैं कि shear एक्शन और प्लास्टिक मेल्ट की जो मिक्सिंग है उसको बहुत अच्छे से करता है. ब्रॉडर रेंज ऑफ स्टिफर फ्लो, मतलब जो स्टिफर फ्लो है उसका बहुत ब्रॉड रेंज देता है. हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी प्रोसेस्ड. जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, जो वस्तु होती हैं, उनको प्रोसेस किया जा सकता है. कलर चेंज कैन बी हैंडल्ड इन शॉर्ट टाइम. कलर चेंज को बहुत ही कम समय में हम हैंडल कर सकते हैं. लोअर स्ट्रेस आर ऑब्टेन्ड इन द मोल्डेड फॉर्म. जो लोअर स्ट्रेस है वो उसको हम मोल्डेड फॉर्म में पा सकते हैं. डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या क्या है. हायर कॉस्ट इन एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन फॉर प्री प्लास्टिसाइजिंग यूनिट, लॉन्गर साइकिल टाइम दैन रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप मशीन. इसमें प्री प्लास्टिसाइजिंग यूनिट का जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइम मशीन से ज़्यादा साइकिल समय ये मशीन यानी स्क्रू प्लंजर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इससे ज़्यादा समय लेती है. अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें है कि स्क्रू यूज्ड इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन. ये डायग्राम आपको कॉलेज में भी कई बार दिखाया गया होगा, और ये स्क्रू है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में. तो इस तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ख़त्म होता है. मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.